Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Two questions are bothering many subscribers. Sir, what is the fate of reserve list? And what is likely vacancies for 2021 selections in case of IBPS? In this video, we will tackle both issues. First is reserve list. What is the past experience of reserve list? Sometimes some candidates are able to get through and others are not getting it through. That means reserve list is no assurance of job in future. It is just a matter of time or matter of chance whether banks will take candidates from reserve list or not reserve list. Some candidates, they go on waiting for a year, they make groups, they engage into discussions, they file RTIs, get the information to get a comfort that whether we will get through or not. But no inferences can be drawn from these informations. Even if people have not joined, even if people have resigned, still it is the prerogative of a bank either to take candidates from reserve list or from next year's selection. So reserve list candidate fate always hangs in uncertainty. So my advice to all these candidates, those are figuring in reserve list, maybe on account of RRB or maybe on account of IBPS PO or clerk, they should treat this as a matter of chance and focus on studies for current year examination. This is the only advice I can give. Some people say I am short by 0.1, 0.2, 0.5. Nobody can predict whether the merit will move at all or not. If it will move, how far it will go down. This we are talking about IBPS RRB officer, IBPS RRB clerk, IBPS PO, IBPS clerk and IBPS SO. So reserve list is an uncertain thing. That is, we can conclude. You may be selected, may not be selected. Because there is no certainty that the bank will take the people against non-joining. Sometime A bank takes it, sometime B banks take it, sometime nobody takes it from here. So we should be very clear. Second is, what is the scenario of vacancies of 2021 as far as IBPS clerk, officer, SO, RRB officer and RRB office assistant are concerned. 2 years ago, I already posted a video in which I gave a scenario for next few years. In that, I told very clearly that from 2020 onwards, every year vacancies will fall. So in 2020, you have already seen the vacancies were lower than 2021. But in the notification, they were extremely low, and I told you that ultimately this will settle IBPS PO at 4,000 plus minus 10%, and for clerk it will settle 8,000 plus minus 10%, and the real figure came similar to that. So to that extent, my prediction was correct, and now you are having another attempt that sir predict for 2021. Now this is not an opportune time to predict vacancies for 2021. We have to wait for some more time because none of the bank is thinking about vacancies for current selection. Because the selection that will be undertaken this year will be for the vacancies arising in the banks from 1st April 2022 to 31st March 2023. As uncertainty is there regarding privatization,
regarding other factors. So none of the bank has started any exercise as far as manpower planning is concerned. And unless that takes over or it starts, we cannot estimate the vacancies. But as in 2022-23 retirements will be lower than current financial year, which has started from 1st April. So it clearly indicates the number of vacancies has to be lower than final vacancies of 2020. The final vacancies of 2020 was PO 4,700 around, and clerk it was around 8,100. So very safely you can assume that this year vacancies will be lower than this. This is in all probability, unless something good developments happen over a period of time, which we are apprehensive. As far as RRBs are concerned, there may be again cut in vacancies, because RRBs will undergo restructuring during this year, and how it pans out, we are not very clear. But still, although vacancies may be lower, but vacancies are there. So we have to focus on study. We have to prepare well. The candidates, those will prepare well, will still get selected despite lower vacancies. So our task is to focus on study. For focus on study, I have given you 3 basic tools. One is good mock test. Link is available in description column. Must take annual plan even if you are having any other mock test. Second is good source of current affairs. That link also I have given you. Go to the link, click the link, you will land up on an app. Download the app, take 2021 plan and apply coupon code AA03 to get 10% discount. And third is banking financial economic awareness videos. Link is available on the home page in shape of a playlist. Watch 10 videos per day. So this should be your strategy, and follow the daily schedule for these exams. These videos are posted in the morning every day. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब लास्ट ईयर के रिजल्ट्स आ चुके. इसके बाद 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार पूछे जा रहे हैं कि सर रिजर्व लिस्ट का क्या होगा और 2021 में कितनी वैकेंसीज आएंगी. इन दोनों प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं. पहला चीज है रिजर्व लिस्ट का फेट क्या है. रिजर्व लिस्ट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कैंडिडेट के जॉब मिलने की संभावना है भी और नहीं भी, और इसलिए मैं इसको बोलता हूं ये 0% प्रोबेबिलिटी है या 100% प्रोबेबिलिटी. इसमें बीच में कहीं नहीं है. या तो आपको नौकरी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी. अब कुछ लोग क्या करते हैं, इनके ग्रुप्स बनाते हैं, डिस्कशंस करते हैं, पूरा साल इंतजार करते हैं, तरह तरह की RTIs लगाते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं. तो क्या उससे कुछ हासिल होता है? आंसर है नहीं. कहीं पे वैकेंसी फिल हुई है नहीं हुई है इसका कोई अंतर नहीं पड़ रहा. अल्टीमेट क्लियरेंस के अंदर कितनी वैकेंसीज खाली रह गई, कितनी भर गई, इसका भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा. अंतर पड़ रहा है कि इस रिजर्व लिस्ट से कोई बैंक ले रहा है या नहीं ले रहा है. ले रहा है तो कौन से स्टेट में ले रहा है, इस पर निर्भर करता है. और ये डिसीजन बहुत लेट होता है. नॉर्मली ये डिसीजन जाके मार्च के आसपास करते हैं बैंक, तो वो 31 मार्च को ही पता लगता है. IBPS PO, IBPS क्लर्क और IBPS SO के लिए. और RRBs के अंदर वो बीच बीच में भी डिसीजन होता रहता है. तो RRB की रिजर्व लिस्ट कई बार 1, 2, 3, 4 भी रिजर्व लिस्ट आ जाती है क्लियरेंस की, एलोकेशन की. तो RRB में पैटर्न डिफरेंट है, क्योंकि RRB रीजनल लेवल के बैंक है. किसी भी बैंक ने अपनी डिमांड भेज दी तो IBPS के पास रिजर्व लिस्ट में कैंडिडेट है, उसको वो रिलीज कर देता है. IBPS एक बोर्ड है, उसके अपने हाथ में कुछ नहीं है. वो डिपेंडेंट है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के ऊपर. अगर बैंक्स को जरूरत होगी तो रिजर्व लिस्ट आगे बढ़ेगी, नहीं जरूरत होगी तो रिजर्व लिस्ट लैप्स हो जाएगी.
तो जो भी कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में है उसको ये मान के चलना है कि उसे नौकरी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, और उसको ये अगर वो मान के चलेगा कि नहीं मिलेगी, इसलिए उसको अगले एग्जाम की भरपूर तैयारी करनी चाहिए। ये मेरी सलाह है। कुछ लोग सच बोलने से, सही बात बताने से नाराज भी हो जाते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने 15 मार्च के आसपास एक वीडियो डाली थी जिसमें सच बता दिया था कि रिजर्व लिस्ट का क्या फेट होने वाला है। कुछ लोग आहत हो गए, उससे नाराज हो गए कि सर ऐसे कैसे कह रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद इन्होंने गलत समझ लिया। मेरा कोई ऐसा अंदेशा नहीं था किसी की भावना को आहत करना। मैंने वो डिलीट कर दी थी। कोई भी बात मैं आपको बता रहा हूं, उसका मकसद आपको मोटिवेट करना है, डीमोटिवेट करना नहीं है। अगर आपको किसी भी बात से डीमोटिवेशन आती है तो मैं ऐसी वीडियो बनाना नहीं चाहता। इसीलिए कई विषय ऐसे होते हैं जिस पे आप पूछते रहते हैं और मुझे लगता है कि इससे आपको नुकसान ही होगा। मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं उन विषयों को टच ही नहीं करता इस चैनल के ऊपर, क्योंकि हमारा मकसद है राइट एडवाइस एट राइट टाइम और आपको निरंतर मोटिवेट करते रहना। तो जो ट्रिगर हमें डीमोटिवेट करते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं और विश करते हैं कि वो ऐसे ना हो, जो घटनाएं बुरी हो रही हैं वो हो ही ना। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि कितनी वैकेंसीज आएंगी आईबीपीएस पीओ में, क्लर्क में, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट एंड आईबीपीएस एसओ में। अब ये जो स्थिति है क्लियर नहीं है। तो क्यों नहीं क्लियर है? क्योंकि अभी किसी भी बैंक ने अपना प्रोसेस शुरू ही नहीं किया। इसलिए अभी अगर हम कुछ भी एक्सपेक्टेशन बनाएंगे या एनालिसिस करेंगे वो सही नहीं होगा। वो सही नहीं होगा क्योंकि 1 मिनट में कॉल ले लूं, जरा बीच में डिस्टर्ब कर दिया। तो हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ठीक। अब इसमें हमें क्या सोचना है कि वैकेंसीज कितनी आएंगी, कैसे आएंगी। इसमें मैंने आपको 2 साल पहले एक वीडियो दी थी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि 2020 ऑनवर्ड्स वैकेंसीज हर साल घटती जाएंगी। जो 2019 में वैकेंसीज आई हैं वो रीसेंट टाइम का पीक है। हर साल ये घटती जानी है। तो 2020 में आप देखेंगे काफ़ी कम वैकेंसीज आई थी, काफ़ी निराशा हो गई थी। तब मैंने ये बताया था कि पीओ में आपकी 4000 प्लस माइनस 10% पे सेटल हो जाएंगी वैकेंसीज और क्लर्क में 8000 प्लस माइनस 10% पे सेटल हो जाएंगी। तो जब फाइनल रिजल्ट आया तो लगभग आपकी 4700 कुछ वैकेंसीज पीओ की हो गई और क्लर्क की 8100 समथिंग हो गई। उसी आंकड़े के आसपास आई जो मैंने बताई थी, ऑल्दो नोटिफिकेशन में कमी आई थी। पर मैंने उसी समय आपको आश्वस्त किया था कि इतनी चिंता मत करें, ये बढ़ेंगी पर उतनी नहीं होंगी जो 2019 में थी, और वही हुआ। 2019 से कम रही मगर उससे ज़्यादा हुई जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन में थी। अब क्वेश्चन आता है 2021 में कितनी होंगी। 2021 में जो वैकेंसीज हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक कितने लोग रिटायर होंगे। ये संख्या कम है उन लोगों से जो 2021 अप्रैल से मार्च 2022 तक होंगे, उसके मुकाबले वो कम है। और 2023 अप्रैल से तो वो संख्या नेग्लिजिबल है। इसलिए 2023 के अंदर नोटिफिकेशंस में बहुत कम वैकेंसी आएंगी। हो सकता है 22 वाले में कुछ आ जाए वैकेंसीज। मतलब ये वर्तमान के ऊपर मैंने आपको बताया। आगे आने वाले टाइम में कोई बहुत डेवलपमेंट्स हो जाए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हो जाए तो उसको तो हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। एस्टिमेशन आधारित है हमारा रिटायरमेंट कितनी है, रिटायरमेंट रिप्लेसमेंट से कितने लोग आएंगे। किसी चीज़ में बहुत ग्रोथ हो जाए तो
हो सकता है वो और एडिशनल वैकेंसीज आ जाए, पर आप देख रहे हैं ग्रोथ नहीं हो रही कंट्री में, डी ग्रोथ हो रही है। तो वैकेंसीज प्रोटेक्ट ही हो जाए, यही बहुत बड़ी चीज़ है। तो सिनेरियो ये कहता है कि जो सेटल हुई हैं वैकेंसी, जैसे 4700 पीओ की वैकेंसी सेटल हुई हैं और 8100 क्लर्क की सेटल हुई हैं, इससे कम वैकेंसीज होंगी, पर यह भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम होंगी, इससे कुछ कम होंगी, 10% 20% हो सकती हैं, यह अंदाजा है। पर सही आंकड़ा हम निकालेंगे जब धीरे धीरे बैंक इसको अपना मैन पावर प्लानिंग करने लगेंगे। तो मैं अभी आपको कोई आंकड़ा नहीं दे रहा और वो ठीक भी नहीं होगा। और इसलिए आईबीपीएस आरआरबी में क्या वैकेंसीज होंगी ये भी कहना असंभव है, क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग होनी है। उसका क्या इफेक्ट आएगा वैकेंसीज पे आज की डेट में पता नहीं है। तो हमें नोटिफिकेशंस की वेट करनी चाहिए। पर हमें क्या करना है, वैकेंसी कम होंगी या ज़्यादा होंगी या सेम होंगी, फिर भी होंगी तो सही ना, नौकरी तो मिलनी है। तो हमें अपना काम करते रहना है, हमें अपनी पढ़ाई करनी है। अगर थोड़ी बहुत कम भी होती है वैकेंसीज, तब भी तो हमारी सिलेक्शन हो सकती है। कई लोग तो अभी भी मेरिट में तो सिलेक्ट हुए हैं। तो हमें अपना काम करना है। इन बातों से हमें चिंतित नहीं होना है कि ट्रेंड डिक्लाइनिंग है, ये रहेगा। सच्चाई का हमें सामना करना है, इसमें बुरा मानने वाली कोई चीज़ नहीं है, जो है सो है। मगर इन विकट परिस्थितियों में हमें कैसे जीतना है ये हमें आना चाहिए। 3 डेडली वेपन मैंने आपको बताए हैं। एक अच्छा मॉक टेस्ट सजेस्ट किया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में दिया। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करिए वहाँ से अपने ईमेल एड्रेस की और नंबर की, और उसके बाद बाय कर लीजिए एनुअल प्लान। दूसरा मैंने आपको लिंक दिया करंट अफेयर्स का, जो बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। उसको क्लिक करिए, लिंक को, आप एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, 2021 का करंट अफेयर ले लीजिए और कूपन कोड AA03 यूज कर लीजिए, 10% आपको डिस्काउंट मिल गया। करंट अफेयर की तैयारी कर लो, सारे एग्जाम्स में काम आएगी जनवरी से करंट अफेयर। और तीसरा, बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस की मेरी वीडियोस, उनको आप ध्यान से देखिए, 10 वीडियो रोज की देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोस हैं। वो प्लेलिस्ट होम पेज पे उपलब्ध है, आपको वहां से आप देखिए। तो जो अभी तक का सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रखा है। इसमें ना तो आपको पैनिक में आने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है, अपना काम करते रहने की जरूरत है। फोकस ऑन स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल।